So here we are discussing today the next video of earthworm, the next physiological characteristics of earthworm. And when we start the next physiological characteristics, if you remember, we have already discussed about the general morphological characters of earthworm. We have discussed the digestive system, respiratory, circulatory system. Okay, this is a system which we have also partially discussed in phylum Annelida. Okay, that is the excretory system. And as you can see, earthworm shows dual excretion, that is urea during dry condition and ammonia during rainy condition. And why does this happens? Because because we know that whenever the urea will be excreted out of the body, urea will carry less water in comparison to the ammonia. We have discussed about this earlier. Okay, whenever the ammonia goes out from the body as a metabolic waste, ammonia carries many water molecules along with it whenever it will be going out. Okay, so whoever excretes ammonia, that particular animal also releases a lot of water from its body, as ammonia carries a lot of water along with it. Okay, now this animal will be able to excrete ammonia at what point of time? When it has abundance of water, when the it is kind of like wet soil, too much of wetness, too much of moisture, too much of water content is there in that soil. So under that condition, when you have a plenty of water around you, you can release ammonia. Ammonia अपने साथ पानी लेके निकल जाएगा. But I live in such condition where there is enough moisture around me, so I will take it back from the surrounding, है ना? But when the condition is dry, when the place where you are living has a less amount of water, so you will release ammonia. Ammonia अपने साथ बहुत सारा water लेके जाएगा, लेकिन तुम reabsorb कैसे करोगे बॉडी में? Because तुम्हारे सराउंडिंग में है ही नहीं, ड्राई कंडीशन. तो उस टाइम पे हम लोग यूरिया रिलीज करेंगे, क्योंकि यूरिया अपने साथ carries less water in comparison to ammonia. So earthworm has this special mechanism that if the condition is wet, it can assess it, it will release directly the ammonia. If the condition is dry, it will convert ammonia into urea and then it will release urea. How ammonia is converted into urea, you will know it later in your physiology classes. Okay, that also in case of us, हमारे body में भी है ना, because we do not have this ability of absorbing water through our skin, है ना, ये absorbing water from the surrounding, ये mechanism तो हम लोगों में है नहीं. हम लोग को body में पानी देना है तो पानी पीना पड़ेगा. सो हमारे बॉडी से भी एमोनिया रिलीज करना हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या रिलीज करेंगे? यूरिया. तो हमारे बॉडी में भी एमोनिया प्रोड्यूस होता है. जब भी कोई अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होगा, एमोनिया प्रोड्यूस होगा, उस एमोनिया को हमारा बॉडी यूरिया में कन्वर्ट करता है. कैसे करता है ये सब बाद में मिलेगा. ओके, व्हाटसोएवर, लेट्स गेट बैक हियर. Excretion takes place by segmentally arranged microscopic coil tubes called nephridia. So this is a definition of nephridia that you can use. Okay, we have discussed about a nephridia pehle, and you can see we have also discussed about this structure also in the phylum Annelida. Nephrostomes, which has the ability of taking the metabolic waste or absorbing the metabolic waste from the coelomic fluid, उसका एबिलिटी है. ठीक है, प्लस ये एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? सिलोमिक फ्लूइड से मेटाबॉलिक वेस्ट को एब्जॉर्ब करके उस मेटाबॉलिक वेस्ट को इसके थ्रू रन करेगा, ऐसे भेजेगा मेटाबॉलिक वेस्ट को. इसको हम लोग बुलाते हैं ट्यूबुलर पार्ट. इट इज हाईली कॉइल्ड एंड इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है एब्जॉर्प्टिव सेल. तो वो एब्जॉर्प्टिव सेल क्या करेगा? सपोज नेफ्रोस्टोम ने एमोनिया एब्जॉर्ब किया है सिलोमिक फ्लूइड से, तो सिलोमिक फ्लूइड से एमोनिया को एब्जॉर्ब किया, तो एमोनिया अपने साथ बहुत सारा वाटर लेके आया. वो उस वाटर को यहाँ इसके अंदर में कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो है ब्राश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल्स. तो ये जो ब्राश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल्स. ये क्या करेगा? जब एमोनिया इधर से जा रहा होगा, उस एमोनिया से वाटर एब्जॉर्ब करके बॉडी में वापस डाल देगा. इसलिए हम लोगों ने लिखा था नेफ्रिडिया डज बोथ द एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करके वापस बॉडी में डाल सकता है ये ट्यूबुलर पार्ट. ठीक है, टर्मिनल डक्ट, नेफ्रिडियोपोर, जिसके थ्रू फाइनली मेटाबॉलिक वेस्ट का पैलेट्स बाहर जाएगा. ठीक है, ये सब डिस्कस किया है. तो यहाँ पे इन तीनों पोर्शन का थोड़ा नोट दिया है. अ सिलिएटेड फनेल शेप पार्ट नोन एज नेफ्रोस्टोम कलेक्ट्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सिलोमिक चेंबर इन द सिलोम. ठीक है, इसका जो काम है वो लिख दिया है. सिलोमिक फ्लूइड में ये सस्पेंडेड रहता है एंड सिलोमिक फ्लूइड से ये क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा मेटाबॉलिक वेस्ट और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को फिर बाहर कर देगा. ठीक है, नेफ्रोस्टोम कंटिन्यूज इनटू अ ट्यूबुलर पार्ट
where waste material is extracted from the fluid. ठीक है, इस ट्यूबुलर पार्ट में हम लोग बेसिकली सेपरेशन करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट का एंड उस मेटाबॉलिक वेस्ट से जो वाटर अटैच्ड है उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये माने अलग अलग सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन करके वाटर को वापस बॉडी में डाल देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को उधर ही रखते हैं। The tubular part terminates passing all the excretory material. ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब हो गया, एक्सक्रीटरी मटेरियल ट्यूबुलर पार्ट के अंदर रह गया, उसी एक्सक्रीटरी मटेरियल को ट्यूबुलर पार्ट पास आउट करेगा टू द सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल, ठीक है, थ्रू अ पोर कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर। ये है नेफ्रिडियोपोर जिसके थ्रू फाइनली बाहर जाता है। तो इनका कुछ कैरेक्टर यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब फंक्शनिंग इसका हम लोग को पता है, कैसे फंक्शनिंग होता है हम लोग डिस्कस किए, स्ट्रक्चर पता है। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इसका टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया एंड यहाँ पे तुम लोग को ये भी समझ में आएगा व्हाई आर्थोम इज कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ये भी यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया में, ठीक है। तो इसका नोट्स बना लो। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया आर ऑफ 3 टाइप्स। मैंने हमेशा बोला है whenever you get a typification there has to be a basis of it, so on the basis of their location, okay. So the first one is called as pharyngeal nephridia. So this pharyngeal nephridia, okay, how or where you are going to find them. Suppose this is the body of an arthome, this is the alimentary canal, okay, alimentary canal, the lumen part I have underlined it out, and these are the segments, segment 1 2 3 4 5 6 7 like that, ठीक है। So you can imagine the mouth was in segment 1, it's not it, then pharynx was in 4 5 6 this region, है ना। तो इसी तरीके का देखने में होता है हमारा सेटअप, जिसमें अभी हम लोग फेरेंजियल नेफ्रिडिया क्या है समझेंगे। तो बोला जा रहा है कि जो 4th 5th एंड 6th सेगमेंट है, उन 4th 5th एंड 6th सेगमेंट में you are going to get some tufts, some paired tufts you will get। बीच से जो जा रहा है वो एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल के लेटरल साइड में कुछ टाफ्ट्स मिलेगा, ठीक है। टाफ्ट इज सम अरेंजमेंट ऑफ सम टिश्यू मास, अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू मास। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू मास है, जो टाफ्ट है वो पेयर्ड है, एक इस तरफ एक इस तरफ रहेगा, इसलिए पेयर्ड बोला गया है। एंड इसके अंदर मिलेगा 2 चीज, क्या इसके अंदर मिलेगा ब्लड ग्लैंड। याद करो हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड ग्लैंड पढ़ा है, जो हेमोग्लोबिन एंड एमिबोसाइट्स दैट मींस WBC को जो बनाता है, ठीक है ना। तो वो कहाँ प्रेजेंट था, 4 5 एंड 6 में प्रेजेंट था। तो यहाँ पे देखो ये 4 5 एंड 6 का जो टफ्ट है उसी में ब्लड ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड उसी ब्लड ग्लैंड के कांटेक्ट में जो भी सिलोमिक फ्लूइड आता है ना, या जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड आता है या सिलोमिक फ्लूइड आता है इन टफ्ट्स के आसपास, ठीक है, क्योंकि आना ही पड़ेगा। टफ्ट जो है वो क्या कर रहा है, ब्लड सेल एज वेल एज एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है ये ब्लड ग्लैंड। तो इस ब्लड ग्लैंड को ये सब फॉर्मेशन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो ब्लड को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लड ग्लैंड एक हाईली फंक्शनल ग्लैंड है जो बहुत सारा काम कर रहा है, और इतना काम करने के लिए ये ग्लैंड को ऑक्सीजन एंड खाना तो देना पड़ेगा। उसके लिए तो ब्लड विल कम इन कांटेक्ट विद दिस ब्लड ग्लैंड। तो ये नेफ्रिडिया इतना स्मार्ट है, इसने ब्लड ग्लैंड पे ज्यादा एक्टिविटी होगा एंड उसके वजह से ब्लड ग्लैंड में ज्यादा ब्लड आएगा, ये इस नेफ्रिडिया को पता है। तो इस नेफ्रिडिया ने इसको क्या किया है, पेयर टाफ्ट्स में ही अपने आप को सेटल कर लिया है। और ये देखो नेफ्रोटोम, वो नेफ्रोटोम के कंटेक्ट में जितना भी फ्लूइड आएगा सब फ्लूइड से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उठाएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा फ्लूइड आने वाला है, तो यहाँ पे रहना ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस उठा पाएगा, और उठा के ये ट्यूबुलर पार्ट, और ये देखो नेफ्रिडियोपोर, ठीक है, कहाँ खुल रहा है, इनटू द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल खुल रहा है। दैट मींस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी फ्लूइड से उठा रहा है और उठा के एलिमेंट्री कैनल के अंदर छोड़ रहा है। हमको पता है एलिमेंट्री कैनल के थ्रू क्या रन करता है, एलिमेंट्री कैनल के थ्रू ह्यूमस रन करता है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो है उसका नेफ्रिडियोपोर इज नॉट ओपनिंग इनटू द स्किन, रादर इट इज ओपनिंग विद इन द एलिमेंट्री कैनल, इन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो बेसिकली जब ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल से ह्यूमस मूव करेगा, उसमें ऐड होगा क्या, उसमें ऐड होगा मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, और मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि क्या, एमोनिया, है ना। तो एमोनिया जो है, एमोनिया में NH3 नाइट्रोजन इज देयर, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है इनका जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है, हाई नाइट्रोजन कंटेंट। तो आज अगर ये नेफ्रिडिया बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट जो जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट हाई रहता है, एमोनिया, उसको उठा के अगर कहाँ छोड़ेगा, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल में, तो बेसिकली ह्यूमस में छोड़ेगा।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ह्यूमस का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा कि नहीं। और जब इस ह्यूमस को ये आर्थवॉर्म एक्सक्रीट करेगा, फीकल डिपॉजिट को जब बाहर छोड़ेगा, आर्थवॉर्म का फीकल डिपॉजिट में क्या प्रेजेंट होगा, आर्थवॉर्म के फीकल डिपॉजिट में हाई नाइट्रोजन कंटेंट रहेगा कि नहीं। तो वो फीकल डिपॉजिट क्या करेगा, जिस सॉइल में आर्थवॉर्म है उस सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाएगा। फ्रेंड ऑफ फार्मर, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को बढ़ा रहा है, प्लस सॉइल में बरोस करता है। तो जो प्लाउगिंग फार्मर करता है इन ऑर्डर टू मेक द सॉइल मोर पोरस, सो दैट ज्यादा मिनरल्स प्लांट खींच सके, प्लांट का ज्यादा रूट अच्छे से प्रोलिफरेट कर सके, वो सॉइल को पोरोसिटी जो है वो क्या कर रहा है, ये जो आर्थवॉर्म है, ये आर्थवॉर्म नेचुरली दे रहा है कि नहीं, तो फार्मर्स को हेल्प कर रहा है कि नहीं, इसलिए हेल्प ऑफ फ्रेंड ऑफ फार्मर्स इसको बोला जाता है। तो इसमें ये वन ऑफ द रीजन है, एंड दिस इज हाउ फेरिंजियल नेफ्रिडिया इज प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, वही लिखा है, दिस नेफ्रिडिया ऑकर्स इन पेयर टफ्ट्स in the 4th, 5th, 6th segment on each side of alimentary canal. Each tuft has a large number of nephridia alongside the blood gland. एक साथ है, nephridiopore opens into the lumen of alimentary canal that is in the pharynx. Pharynx region में nephridiopore इन सब pharyngeal nephridia का आके खुलेगा एंड जो ह्यूमस है उस ह्यूमस में मेटाबॉलिक वेस्ट को डाल देगा। ठीक है, तुम लोग का दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमेंट्री कैनल को डैमेज नहीं करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल के सेल्स में वो विथस्टैंड कैपेबिलिटी है, टॉलरेंस है कि ये उन सेल्स को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका नोट बनाओ। सो यहाँ पे नंबर 2 डिस्कस किया है। नंबर 2 को बोला जा रहा है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, एंड यहाँ पे नाम इज ओनली सेइंग द काइंड ऑफ फंक्शनल connectivity of this nephridia with which organ of the body. Functional connectivity of this nephridia with which organ of the body? The functional connectivity will be with integument. Integument माने skin, तो skin से कुछ relation है इस nephridia का। अगर याद है एनाटॉमी ऑफ बॉडी वॉल हम लोगों ने क्या था, तो बॉडी वॉल में सबसे ऊपर हम लोग को क्या मिला था, क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे क्या मिला था, एपिडर्मिस। इसलिए एक वीडियो समझने से पहले दूसरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस के नीचे हम लोग को क्या मिला था, मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल का लेयर मिला था। सर्कुलर ऊपर, लॉन्गिट्यूडनल नीचे। मस्कुलर लेयर के बाद हम लोग को मिला था सीलोमिक इपिथेलियम। ये सीलोमिक इपिथेलियम जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका नीचे का जो मतलब सीलोमिक इपिथेलियम के नीचे का जो पार्ट है वो है एक सीलोम, वो है एक बॉडी कैविटी। ठीक है, और इस सीलोम या जो बॉडी कैविटी है इस सीलोमिक इपिथेलियम के नीचे, दिस सीलोम और बॉडी कैविटी मस्ट बी फील्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड। इसी सीलोमिक फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, मेटाबॉलिक वेस्ट इज प्रेजेंट इस सीलोमिक फ्लूइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या होगा, बोला क्या जा रहा है, नेफ्रिडिया होगा प्रेजेंट ऐसे ऐसे, यहां से ऐसे जाके इधर। नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम क्या करेगा, नेफ्रोस्टोम इस सीलोमिक फ्लूइड से मेटाबॉलिक वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा और इस नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बाहर करेगा। जो नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बाहर हो रहा है वो बेसिकली क्यूटिकल से बाहर हो रहा है, माने स्किन का जो अपर मोस्ट लेयर है उससे बाहर हो रहा है। हुआ कि नहीं, स्किन के साथ रिलेशन। तो वही बोला है, दे आर अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल। इनर सरफेस ऑफ बॉडी वॉल माने अंडर इनर मोस्ट लेयर इन ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। They are microscopic, एकदम छोटा छोटा होता है, and numerous. They are terminal duct. Terminal duct opens on the body surface independently through minute openings. They discharge waste matter directly into the body surface. ये है integumentary nephridia. Now, जब आर्थवॉर्म सॉइल के थ्रू मूव करेगा, एक तो उसके एलिमेंट्री कैनल के अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट जा रहा है, एंड इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया के थ्रू वो मेटाबॉलिक वेस्ट को सॉइल में भी छोड़ रहा है कि नहीं। जिस सॉइल से वो बरो बनाते हुए जा रहा है उस सॉइल में भी तो छोड़ रहा है, सराउंडिंग सॉइल में। तो सराउंडिंग सॉइल में छोड़ रहा है, माने सराउंडिंग सॉइल को क्या कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें ऐड कर रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाएगा, नाइट्रोजन बूस्ट प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो ये है सेकंड टाइप। नाउ मूविंग टू द थर्ड टाइप। तो नंबर 3 है सेप्टल नेफ्रिडिया। तो सेप्टल नेफ्रिडिया में क्या बोला जा रहा है, ये मान लो हम लोग आर्थवॉर्म को ड्रॉ कर रहे हैं लेटरल व्यू में। तो सेगमेंट्स बॉडी में प्रेजेंट है। मान लेते हैं ये वाला सेगमेंट 15 है, ये 16 है, ये 17 है, लाइक दैट। ठीक है, एंड हमको पता है एकदम बीच से एलिमेंट्री कैनल पास हो रहा है।
ये है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। 15, 16 गलत जगह थी। ठीक है, तो ये सब सेगमेंट्स हैं और ये बीच से एलिमेंट्री कैनल ऐसे करके पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है 15 और 16 के बीच का ये क्या है, ये है इंटर सेगमेंटल सेप्टम, जिसको हम लोगों ने ग्रूव एन्यूली, वो तो बाहर से बोला था, अंदर से भी तो एक सेगमेंट का जैसा एक पर्दा टाइप का कुछ तो होगा, ठीक है, उसको हम लोग इंटर सेगमेंटल सेप्टम बुलाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो इंटर सेगमेंटल सेप्टम है, ये इंटर सेगमेंटल सेप्टम के आसपास, ठीक है, ये इंटर सेगमेंटल सेप्टम के नियर बाई इट, ठीक है, सिलोमिक पाउचेस आर प्रेजेंट, ठीक है। उन सिलोमिक पाउचेस से मान लेते हैं ये है 16 का सिलोमिक पाउच, मान लेते हैं ये है 15 का सिलोमिक पाउच। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये सब सिलोमिक पाउच जो है वो सेप्टम के बहुत पास है। तो सेप्टम के पास है तो यहाँ पे इस तरीके से नेफ्रिडिया एक प्रेजेंट है जो सेप्टम से जुड़ा हुआ है, एंड उसका नेफ्रिडियोपोर आके एलिमेंट्री कैनल में खुलता है, ठीक है ना। सिमिलरली बोथ साइडेड बोला गया है, बोथ साइडेड बोला गया माने ये तो इस साइड हुआ, एक ऐसा भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी होगा, तो बोथ साइडेड प्रेजेंट है, ठीक है, इसका एक ऐसा भी होगा, समझ में आया ना। ये है बोथ साइड का मीनिंग। तो ये इससे उठा रहा है और ये वाला जो है ये वाला उठाएगा किससे, इसका जो पाउच है उससे, लाइक दैट, समझ में आया। तो ये लिखा है दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टम बिहाइंड द 15 सेगमेंट, माने 15 सेगमेंट के बाद से, माने 15-16 का जो ग्रूव आएगा वहां से लेके एकदम लास्ट तक। द डक्ट्स ऑफ दिस नेफ्रिडिया ओपन्स इनटू द इंटेस्टिनल रीजन, क्योंकि 15 से लेके ये प्रेजेंट है 15 से लेके, लेकिन इसका जो डक्ट है वो डक्ट रन करके जाके पीछे की तरफ खुलेगा, नॉट एकदम इंटरमीडिएट नहीं खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ऐसे दिया है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेप्टम में प्रेजेंट जरूर है ये नेफ्रिडिया, लेकिन ये जाके एलिमेंट्री कैनल के उस जगह पे खुलेगा जहां से इंटेस्टाइन शुरू होता है। एंड एज वी हैव स्टडीड इट अर्लियर दैट द इंटेस्टाइन का जो रीजन है वो इंटेस्टाइन का रीजन 15 से ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा रन करेगा, एंड जहां से मोटा मोटी 15 के बाद से सेंस बन रहा है, 15 के बाद से जो इंटरसेगमेंटल सेप्टम है वहां से सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, एंड 15 से इंटेस्टाइन शुरू होता है, तो जनरली ये लोग ऐसे आके इंटेस्टाइन में खुल जाता है। जो थोड़ा पीछे का नेफ्रिडिया है उनका थोड़ा स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होके जाके खुलता है। टाइफ्लोसोलर रीजन में ज्यादा ओपनिंग नहीं होता है, तो प्री टाइफ्लोसोलर में ही डायरेक्ट ओपनिंग होता है, एंड टाइफ्लोसोलर में कम होता है, पोस्ट में फिर से ज्यादा होता है। तो टाइफ्लोसोलर रीजन का जो सेप्टम होगा, उन सेप्टम में जो नेफ्रिडिया उनका थोड़ा स्ट्रेच होके जाके पीछे पीछे खुलता है, थोड़ा गैप में खुलता है, वो थोड़ा और डीप डिस्कशन हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं। बेसिकली ये समझ लो इसमें कि इसका जो सेप्टल नेफ्रिडिया है वो सेप्टम 15-16 सेप्टम से शुरू होगा, और उन सेप्टम के आसपास का जो सिलोमिक पाउचेस है उनसे मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करके एलिमेंट्री कैनल के ल्यूमेन में, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में डाल देता है, और इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में डाल रहा है एग्जैक्टली लाइक फेरिंजियल नेफ्रिडिया। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो ह्यूमस इस एलिमेंट्री कैनल के थ्रू पास हो रहा है उसमें ऐड हो रहा है, एंड पोटी के साथ बाहर निकलेगा। तो एक नेफ्रिडिया है जो सीधा स्किन के थ्रू बाहर छोड़ता है, दो नेफ्रिडिया है जो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू जो सोयल मूव करता है ह्यूमस उसमें छोड़ देता है, एंड पोटी के साथ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे नेफ्रिडिया होता है खत्म। अब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम। आज के लिए बस इतना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह जाएगा, वो मैं एक साथ कराना चाहता हूँ, अलग अलग नहीं। तो आज का वीडियो में उसको नहीं कराऊंगा, वो कल का वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। इसका नोट बना। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आर्थोम, एंड ऐसा होगा नर्वस सिस्टम देखने में, ठीक है, जिनमें इस तरीके का दो बड़ा बड़ा गैंग्लिया रहेगा जिसको हम लोग सेरेब्रल गैंग्लिया बुलाते हैं, ठीक है, और ब्रेन। तो ब्रेन और सेरेब्रल गैंग्लियन है ये दोनों, ठीक है, पेयर्ड। ओके, यहाँ से निकला है ऊपर के तरफ कुछ छोटा छोटा नर्व्स कॉल्ड सेरेब्रल नर्व्स, जो है ना आसपास का मूवमेंट को मॉनिटर करेगा, और लंबा लंबा कुछ नर्व्स निकला है जो है प्रोस्टोमियल नर्व, जो प्रोस्टोमियम जो लीड है उस लीड का ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करेगा। इन सेरेब्रल गैंग्लियन से पीछे के तरफ रन करता है इस तरीके का दो
कनेक्टिव फेरिंजियल, सरकम और फेरिंजियल कनेक्टिव हम लोग इसको बुलाते हैं। इस तरीके का कुछ रन करता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू बट मोस्टली न्यूरोग्लियल सेल्स आर देयर। ओके, पीछे की तरफ एक ट्रैक्ट, एक रास्ता के जैसा फॉर्म कर रहा है, एक मतलब एक कॉर्ड के जैसा फॉर्म कर रहा है, और आके फिर दोनों जुड़ जाता है, एक पॉइंट पे दोनों जुड़ जाता है। जहां पे दोनों जुड़ता है वहां पे एक गैंग्लियन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग सब फेरिंजियल गैंग्लियन बुलाते हैं। तो ये जो जगह है सब फेरिंजियल गैंग्लियन इंक्लूडिंग द सेरेब्रल गैंग्लियन, ये दोनों मिलके सब फेरिंजियल गैंग्लियन एंड सेरेब्रल गैंग्लियन क्या कर रहा है, एक रिंग के जैसा फॉर्म कर रहा है कि नहीं, इसको हम लोग ब्रेन रिंग या नर्व रिंग बुलाते हैं, ठीक है। इसको दिस इज कॉल्ड ब्रेन रिंग, ठीक है, ब्रेन रिंग। अच्छा, ये जो सब फेरिंजियल गैंग्लियन है, इससे नीचे के तरफ माने पोस्टेरियर में दो नर्व कॉर्ड रन करेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक नर्व कॉर्ड है, देखो नर्व कॉर्ड है, लेकिन ये नर्व कॉर्ड दो है। ये यहाँ पे हम लोग को जो दिखाई दे रहा है इसके पीछे एक और है। तो बेसिकली ये जो सब फेरिंजियल गैंग्लियन है उससे दो नर्व कॉर्ड निकलता है, और जहां जहां ये दोनों नर्व कॉर्ड एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, इस नर्व कॉर्ड के ठीक पीछे एक और नर्व कॉर्ड है जो यहीं से निकला है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे साइड में मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ऐसे देखो, ऐसा करके एक नर्व कॉर्ड एक और निकला है। कंफ्यूज हो जाएगा ना, 3D नहीं है ना डायग्राम। तो एक और नर्व कॉर्ड निकला है जो ठीक इसके पीछे है। दोनों नर्व कॉर्ड एक सर्टेन पॉइंट दोनों जुड़ जाता है, जहां पे जुड़ता है वहां पे फॉर्म करता है इस तरीके का एक और प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग सेगमेंटल गैंग्लियन बुलाते हैं। हर एक सेगमेंट में ये दोनों नर्व कॉर्ड जुड़ जाएगा और जुड़ के एक गैंग्लियन का फॉर्मेशन करेगा, जिसको सेगमेंटल गैंग्लियन बुलाएंगे। फिर दो अलग हो जाएगा, फिर रन करेगा दोनों नर्व कॉर्ड, फिर एक पॉइंट पे दोनों जुड़ जाएगा, फिर एक सेगमेंटल गैंग्लियन बनेगा, ठीक है। इन सेगमेंटल गैंग्लियन से लेटरली कुछ नर्व्स निकलता है जिनको हम लोग सेगमेंटल नर्व्स बुलाते हैं। तो ये है डायग्राम, यहाँ पे वही लिखा है, पेयर ऑफ क्लोजली यूनाइटेड व्हाइट पीआर शेप्ड सेरेब्रल गैंग्लिया लाइंग डोर्सली इन द डिप्रेशन बिटवीन बकल कैविटी एंड फेरिंग्स इन द थर्ड सेगमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया है। नर्व कॉर्ड फ्रॉम सब फेरिंजियल गैंग्लियन रन्स मिड वेंट्रली, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ठीक है, टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी रन करता है टू नर्व कॉर्ड्स निकलेगा। हर सेगमेंट में दोनों नर्व कॉर्ड जुड़ के एक सेगमेंटल गैंग्लियन बनाएगा, फिर अलग, फिर उस सेगमेंटल गैंग्लियन के नीचे फिर दो नर्व कॉर्ड फिर एक जगह जुड़ेगा, फिर इस तरीके का एक सेगमेंटल गैंग्लियन बनाएगा। तो ये है नर्वस सिस्टम। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स सेंसरी सिस्टम। तो यहाँ पे सेंसरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्थवॉर्म के पास कोई सेंसरी ऑर्गेन नहीं है, जैसे कि हमारा सेंसरी ऑर्गेन में वी हैव ईयर, सेंसरी ऑर्गेन सुनने में मदद करता है, नोज स्मेल रिकॉग्निशन में मदद करता है, सेंसरी ऑर्गेन टंग टेस्ट रिसेप्शन, सेंसरी ऑर्गेन आंख, सेंसरी ऑर्गेन लाइट रिसेप्शन। उनमें ऑर्गेन नहीं है लेकिन रिसेप्टर्स है, ठीक है ना। हमारा रिसेप्टर्स जुड़ के ऑर्गेन बन चुका है, उनका अभी भी रिसेप्टर्स स्कैटर्ड है, जुड़ा नहीं है, ऑर्गेन नहीं बना है, ठीक है। तो क्या क्या रिसेप्टर है? दे फोटो रिसेप्टर जो लाइट सेंसिटिव है, ठीक है। ये जो फोटो रिसेप्टर है कहाँ प्रेजेंट है? आर्थवॉर्म जब मूव करके जाएगा वो अपना वेंट्रल साइड के थ्रू मूव करता है, वेंट्रल साइड ग्राउंड में रहता है, डोर्सल साइड एक्सपोज रहता है। तो एक्सपोज्ड एरिया में फोटो रिसेप्टर होने से अच्छा है, वेंट्रल साइड में रहेगा तो लाइट का पता वैसे भी तो नहीं चलेगा, लाइट विल नॉट come and touch on the ventral side, it will come and touch on the dorsal side which is exposed one. So they are present on the dorsal surface and are numerous in the anterior region. बॉडी के आगे के हिस्से में बहुत ज्यादा है, पीछे कम है. They enable worms to judge the intensity and duration of light. Hence earthworm जो है वो लो लाइट कंडीशन में ही बाहर आता है, जैसे कि नाइट को बाहर आएगा, नाइट क्रॉलिंग करता है, डॉन डस्क को बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो लाइक दैट. ओके, ठीक है. डे को नहीं निकलेगा. एपिडर्मल रिसेप्टर टच सेंसिटिव, ठीक है. तो ये टच सेंसिटिव है, तो टच इसका बॉडी का कौन सा पोर्शन टच करता है? वेंट्रल एंड लेटरल साइड. तो ये रिसेप्टर वेंट्रल एंड लेटरल साइड में ज्यादा पाया जाता है. फाउंड ऑल ओवर द एपिडर्मिस बट अबंडेंट ऑन द लेटरल एंड वेंट्रल साइड, ठीक है, क्योंकि वो टच करता है चीजों को या वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है. दे ऑल्सो हेल्प द अर्थवॉर्म टू फील द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड. पहले जब रिक्टर स्केल नहीं था तो यही हमारा अर्थक्वेक का इंडिकेटर था, ठीक है. अचानक अर्थवॉर्म अगर अपना बरोज से निकल के आना शुरू करे, धमाधम सब निकल रहा है, दैट मीन्स अर्थक्वेक आने वाला है. ऐसा टाइप से प्रिडिक्शन करते थे पहले के ज़माने में. बकल रिसेप्टर्स ऑब्वियसली फाउंड इन बकल कैविटी, मुंह के अंदर है, और वेराइटी ऑफ रिसेप्टर है, जैसे कि गस्टेटो रिसेप्टर है जो टेस्ट सेंसेशन करता है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर स्मेल सेंसेशन, केमो रिसेप्टर इट कैन जज द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल. समझ में आया? सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, पीएच ऑफ द सॉइल को जज कर सकता है ये केमो रिसेप्टर. ये भी प्रेजेंट है मुंह के अंदर. तो जो सॉइल खा रहा है उस सॉइल में अगर ज्यादा एसिड प्रेजेंट है या बेसिक है सॉइल या एसिडिक है, कैसे पता चलेगा? इसके मदद से. इसलिए मुंह के अंदर है क्योंकि सॉइल उसके मुंह के अंदर से जाता है, ठीक है ना.
तो ये है सेंसरी सिस्टम। अब बचा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एज वेल एज फीमेल। दिस एनिमल इज अ हर्माफ्रोडाइट, एक ही बॉडी में मेल भी होगा फीमेल भी होगा। तो क्या क्या पार्ट्स है, कैसे कौन सा पार्ट क्या का फॉर्मेशन करता है, इसको एक ही टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इन व्यू ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होता है और बॉडी के फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट क्या क्या करके आर्थ्रोम खलास कर देंगे। ठीक है, दिस इज द थर्ड वीडियो। फोर्थ वीडियो में आर्थ्रोम खत्म। एंजॉय।